And animals. Animals? Yes. So now in today's class, we are going to learn about animals. Okay. So before we start with the animals, here is very simple thing that I'm going to ask you. Do you know what is habitat? Ma'am, yes. Yes, tell me then. Ma'am, ma'am, habitat is a place that where animals adapt. Okay. Who else wants to tell? Okay, 6th first bench girl. Yes. Yes, 6th first bench girl. Ma'am, the habitat is where plants and animals survive. They survive. So basically, habitat is a place where organisms live because animal is getting everything there, shelter, food, protection. Okay? So that place is their habitat. Okay. So based on where they live, we have categorized into different types where they are living. Either they can live in, on land, on we can say on in water. Okay. So we are classifying them. Okay. So now let's focus on that, everyone. Now draw this flow chart. सब अपनी notebook निकालो. Take out your notebook. Everyone, take out your notebook. Yes, take out your notebook and pen pencil. Okay. So now make the heading habitats. ठीक है, ये आपकी heading है. Habitat center में लिखना. Right in the center. So there are how many types of habitat? There are two types of habitat. And these are Terrestrial and aquatic. both terrestrial and Aquatic. तो ऐसे heading लिखो everyone. Note down like this. Terrestrial means land, aquatic means water. ठीक है. टेरिस्ट्रियल का मतलब हो गया जमीन पे रहने वाले. एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं. सबने ऐसे ही बनाना है. So now coming to the terrestrial. अब क्या हमारे आसपास जो जमीन है क्या वो एक जैसी है? इंडिया की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. क्या इंडिया में सारी जगह एक जैसी ही जमीन है, एक जैसा ही लैंड है? इज इट डिफरेंट? Yes. कैसे? हु कैन टेल मी? इफ वी गो टू द हिमाचल, कैसा लैंडफॉर्म मिलेगा? प्लेन मिलेगा या फिर डेजर्ट मिलेगा, माउंटेन्स मिलेगा, पोलर मिलेगा? व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म विल बी देयर? यस, इन हिमाचल Ma'am, mountains. माउंटेन्स, तो वहां पर हमें माउंटेन्स मिलेंगे. नाउ इफ वी गो टू द राजस्थान, वहां पर कैसा मिलेगा? Desert. डेजर्ट. दैट्स नाइस. और अभी हम चंडीगढ़ में हैं, या फिर अगर आप अपनी जगह जो जहां पर, वहां पर कैसा है? Plain. प्लेन. सो देयर इज प्लेन. ठीक है. अब किस किस ने पांडा देखा हुआ है? पांडा नहीं, सॉरी, पोलर बियर देखा हुआ है, पेंगुइन देखा हुआ है? नॉट इन रियल लाइफ, आई नो, क्योंकि वो तो बहुत दूर होता है. सो इन एनी डिस्कवरी चैनल और समवेयर यू मस्ट हैव सीन, है ना? पांडा और पेंगुइन, सॉरी, पोलर बियर एंड पेंगुइन यू हैव सीन और नॉट? Same. वो कहाँ पर होता है? वेयर डू वी फाइंड देम? Ma'am, pandas live in forest and polar bears live in polar regions. Yes, so polar lives in polar regions. ठीक है, that's right. So अभी आपने जो मुझे सबने जो बताया, you know what are these? These are different habitats, land habitats. So let's see that also. ठीक है, उसको भी देख लेते हैं. So first is desert. As we discussed, we found it in Rajasthan. ठीक है, इंडिया में.
और भी जगह है, बट टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, अभी इंडिया के बारे में डिस्कस करें। पोलर रीजन्स इंडिया में नहीं है, ओके, बिकॉज इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल मतलब वो आप लेटर ऑन ज्योग्राफी जब आपकी होगी उसमें आप डिस्कस करोगे, ठीक है। हम पोल की तरफ नहीं है, ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल, वी आर इन द मिडल, ठीक है। So polar region extremely cold environment. Then coming to forest. So in India we have many forests, ठीक है। If we go to the Meghalaya, वहां पर आपको जो है evergreen forest मिलेंगे, ठीक है। Then mountains, as I discussed, like in Himachal. So these are the different land forms or land habitats that we can see. Now coming to aquatic one, okay. फ्रेश वाटर मतलब जो हम पानी पी सकते हैं, ठीक है। जब पानी भी पीते हो दैट इज अ फ्रेश वाटर। व्हाई इट इज अ फ्रेश वाटर? बिकॉज वी आर गेटिंग वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग रिवर, जो पानी बह रहा है। क्योंकि देखो खड़े पानी से, इफ वी टॉक अबाउट कि हम पॉन्ड से ले लें, ठीक है, पानी, या फिर कोई भी खड़ा पानी उससे ले ले, तो क्या होगा? बिकॉज इट इज स्टेगनेंट, खड़ा हुआ है, मेनी वर्म्स कैन ग्रो, इंसेक्ट्स कैन ग्रो देयर, ठीक है। अब खड़ा हुआ है तो उसमें इम्प्योरिटीज, मिट्टी वगैरह सब मिलेगी। बट अगर पानी बह रहा है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो अपने साथ सारी चीजें लेता जा रहा है, दूर साइड करता चला है, वो ठहरा नहीं है। सो इट इज गेटिंग फ्रेश वाटर, ठीक है, उसमें फ्रेशनेस होगी। एंड इन फ्रेश वाटर, इफ वी टेक एग्जांपल, सो इट्स रिवर, ठीक है, नदी होगी, लेक हो गया। इवन इफ वी से, जो फ्रेश वाटर है उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत कम होता है, नमक बहुत कम होता है, ठीक है। सो लेट्स सी हियर नेक्स्ट, मेरीन। मेरीन मीन्स समुंदर, ओशन और सी, वहां की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओशन एंड सी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी, डू यू नो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी? कौन बता सकता है ओशन और सी में क्या डिफरेंस है? हु कैन टेल मी? ये सेम होते हैं, हमने बस ऐसे ही नाम ले लिया, कभी मन कर दिया ओशन कह दिया, कभी मन कर दिया सी कह दिया। यस, इज इट सेम? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओशन सी से बड़ा होता है। इट्स सेम है ना। अब चलो, अब चलो, आपके आपके बेटा पहले बताओ, ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, एसएसटी सोशल साइंस स्टार्ट हो चुका है आपका सब्जेक्ट? यस, सो यू मस्ट, मैथ्स वगैरह पढ़ना शुरू हो चुका है? ओके, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अगर when we talk about ocean and sea, there is a difference between these two, these are different. अगर हम हिंदी में बात करें, oceans are called महासागर and seas are called सागर। अब जब हम महा लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा बड़ा। सो सागर, इफ वी टॉक अबाउट सी, सीज जो है बेटा, उसके चारों तरफ आपको जो है हमेशा पानी ही नजर आएगा। उसके कई बार वो जो है जमीन के पास भी होता है, क्योंकि अगर हम सीज की बात करें, इंडिया के चारों तरफ अरेबियन सी ऑन वेस्ट यू कैन सी, ठीक है। अरेबियन सी जो है, जैसे महाराष्ट्र वाली साइड जाए तो यू कैन सी इट्स अरेबियन सी, वो लैंड के साथ है, ठीक है। उसके चारों चारों तरफ नहीं, एक साइड जो है लैंड आता है। बट इफ यू गो टू द ओशन, अगर ओशन में जाए, यू कैन नॉट फाइंड लैंड, आपको लैंड नहीं नजर आएगा, एंड इट इज वेरी डीप ऑल्सो एज कंपेयर टू सी। इज इट क्लियर डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सीज? And in our world, we have 5 oceans only. और and you will be proud, एक ओशन का नाम इंडिया के नाम पे है, इंडियन ओशन, ठीक है। सोचो 5 ओशन है, उसमें से भी एक नाम इंडिया का है, इंडियन ओशन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, एंड सीज, वी हैव मेनी सीज, ठीक है। सीज जो है यू कैन से इट्स मोर देन 50, ठीक है, इन वर्ल्ड वाइड। So we have 5 oceans, and these oceans and seas are marine. Marine मतलब हो गया नमकीन पानी होता है इनका, we cannot drink these. सोचो इतना सारा समुंदर है चारों तरफ अर्थ के, लेकिन हम कहते हैं पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी होती है, we should conserve water. Yes? Why we are saying this? Why we are saying this?
Why we are saying that? अर्थ चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है, 70% से ऊपर पानी है, बट स्टिल वी आर सेइंग वी शुड सेव वाटर, वी शुड सेव वाटर. व्हाई वी सेव वाटर? ऑलरेडी लैंड इतना सा है, पानी इतना है, स्टिल वी आर सेइंग वी आर फोकसिंग ऑन सेविंग वाटर. व्हाई वी आर सेइंग दिस? व्हाट इज द रीजन? मैम क्योंकि पानी बहुत वेस्ट होता है. तो कर लो वेस्ट, पानी तो है ही ज्यादा. मैं कह रही हूँ 70% से ज्यादा वेस्ट कर लो, बट नहीं करना. क्यों नहीं करना? व्हाट इज द रीजन? पॉल्यूटेड भी है. अच्छा, पॉल्यूटेड भी है इसलिए. चलो ठीक है. अच्छा, सिक्स बी से फोर्थ बेंच बॉय. फोर्थ बेंच बॉय आजा बेटा, यू टेल. And because quantity of drinking water is less and salty water is very much वेरी on the earth. यस, दैट्स द आंसर. दैट्स गुड बेटा, दैट्स गुड. ये आंसर है बेटा. पानी है बट वी कैन नॉट यूज इट. समुद्र चारों तरफ है बट वी कैन नॉट यूज इट. उस पानी से आप नहा भी नहीं सकते, पूरी बॉडी पे नमक आ जाएगा. कपड़े नहीं धो सकते, कपड़े खराब. बर्तन नहीं धो सकते, उसमें नमक बैठ जाएगा. ठीक है, यू कैन नॉट ड्रिंक इट. आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी उस इतना खारा पानी पी के. सो इट्स ऑफ नो यूज. चारों तरफ पानी बट वी कैन नॉट यूज इट. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन सेविंग वाटर, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है ये बहुत कम है. रिवर्स बहुत कम है. ठीक है, ग्लेशियर्स आर डाइंग. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग, बिकॉज एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना पानी नहीं बढ़ रहा. इट इज गेटिंग डिक्रीज. ये कम होता जा रहा है. सो फॉर आवर कमिंग जनरेशन, हमारी आने वाली ह्यूमन की जनरेशंस, वी आर फोकसिंग, हमें पानी बचाना चाहिए. गॉट इट? नाउ क्लियर हुआ व्हाई वी शुड सेव वाटर? Yes. क्योंकि पीने वाला पानी थोड़ा है. ठीक है, उसको बचाना है आपने. गॉट इट? Now 5% is water is good for drinking. अभी 5. अभी अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी वो टॉपिक अगर मैंने छेड़ दिया तो तुम्हारा ये सारा रह जाएगा. ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको ये डिफरेंस बताया. ठीक है, फ्रेश वाटर, मरीन. मरीन मीन्स सॉल्टी वाटर, सी ओशन से आता है. अब अगर हम सी की बात करें तो वी कैन से इट कोस्टल ऑल्सो. कोस्टल एरिया क्या होता है? किनारा, है ना. थर्ड वी कैन से एकदम किनारे के साथ साथ जो रहते हैं. ठीक है. सो दोज आर द ऑर्गेनिज्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. कोस्टल, समुद्र के साथ साथ. ठीक है. So this is how we can classify habitats into terrestrial, aquatic, and then these are further classified. Is it correct? अब हमने क्या करना है? We are going to discuss these one by one and we will see वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जो एनिमल्स हैं या वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आती होगी वहां पर रहने में. हाउ दे अडेप्ट टू दीज हैबिटेट्स. ठीक है, इट इज नॉट इजी टू लिव इन डेजर्ट. इट इज नॉट इजी टू लिव इन पोलर रीजन. अगर हम जाएं डेजर्ट में अभी इस टाइम, सो वी फील सो हॉट. यस. सो दे हाउ दे लिव. सो लेट्स सी हियर डेजर्ट हैबिटेट. तो डेजर्ट अगर हम सिर्फ इसको देखें, वी कम टू नो वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट. यस, यस, इज इट डेजर्ट? ठीक है. अब मुझे बताओ, जब आप डेजर्ट के बारे में सोचते हो, व्हेन यू थिंक अबाउट डेजर्ट, सबसे पहली चीज क्या आती है? व्हाट कम्स इन योर माइंड? Ma'am, cactus. Sand. अच्छा, सबके दिमाग में एक कैक्टस आता है और एक सैंड आती है. कैक्टस तो अभी यहाँ पर भी ग्रो हो जाते हैं, गमलों में देख लोगे, यू कैन सी. Ma'am, camel also. Camel. कैमल भी दिख जाएगा अभी तो फिलहाल के लिए, है ना. कैमल राइड्स होती है. सैंड सबसे पहले आता है. सैंड. ओके. और सबसे पहले क्या आएगा? बहुत गर्मी वाली जगह है. यस और नो? जब हम डेजर्ट के बारे में सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे? हॉट इन्वायरमेंट. कैसे रहेंगे वहां? तो पेड़ पौधे है ही नहीं. यस, वी विल थिंक लाइक दिस. Yes, ma'am. अगर आपने अपना सूटकेस पैक करना है डेजर्ट में जाने के लिए, व्हाट यू विल पैक? कॉटन के क्लोथ्स, है ना. Yes. खाने के आइटम्स देखोगे जिसमें लिक्विड ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो. यस.
Yes. यस, हैट पहनोगे ताकि जो सनबर्न ना हो। यस, Yes. तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। ये तो हमारी होगी, लेकिन जो वहां रहते हैं वो कैसे करेंगे? क्योंकि डेजर्ट हैबिटेट मीन्स पानी बहुत कम है, गर्मी बहुत ज्यादा है। सो लेट्स सी हियर हॉट। अब देखो मैंने यहाँ पर कोल्ड भी लिखा है, बताओ कोल्ड क्यों लिखा है? व्हाई आई हैव मेंशन कोल्ड? क्योंकि वहाँ पे रात को सर्दी होती है। रात को सर्दी नहीं, वो तो चलो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वेदर थोड़ा कोल्ड होता है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि दिन के टाइम जो हम कह रहे हैं कि हम एसी चला रहे हैं और रात को हम रजाइयां ओढ़ रहे हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन कोल्ड मतलब जब जब विंटर सीजन चलता है, बिकॉज वहां पर ह्यूमिडिटी नहीं है, सो वहां पर ड्राई विंटर्स होती हैं। ठीक है, वहां पर कोल्ड जो अगर गर्मी जितनी पड़ती है उतनी ही सर्दियां पड़ती है, एक्सट्रीम लेवल। ठीक है, एंड इन इंडिया वी हैव कोल्ड डेजर्ट ऑल्सो। डू यू नो दैट? Rajasthan, you all are aware of. Can you tell me the name of one cold desert also? In India, we have cold desert. We are blessed. India is a country with diverse. Where? Hard desert. अच्छा, थार डेजर्ट अब हॉट से कोल्ड भी हो गया? अरे बड़ी जल्दी बदलते तुम लोग हैं। नाउ यार, थार डेजर्ट कहाँ पर है? Where is थार डेजर्ट? इन राजस्थान। तो वो कैसे, फिर वो कैसे कोल्ड डेजर्ट हो गया? मैं तो कह रही हूँ वो हॉट डेजर्ट है। चलो मैं बताती हूँ। इन इंडिया कोल्ड डेजर्ट इज इन लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में कभी जाओगे, इफ यू गेट चांस, तो वहां पर भी ऐसे पहाड़ और ऐसी रेत दिखेगी। ठीक है, व्हाइट कलर की दिखेगी वहां पर थोड़े, और पहाड़ भी थोड़े से ऐसे और हाइट के दिखेंगे, बिकॉज इट इज एट हाइट, थोड़ा हाइट पे सिचुएटेड है एज कंपेयर टू राजस्थान। सो दैट इज कोल्ड डेजर्ट, वहां भी बारिशें नहीं होती। ठीक है, इट इज कोल्ड प्लेस, बट वहां पर रेनफॉल इज ऑलमोस्ट नील, क्योंकि वहां तक क्लाउड्स पहुंचते नहीं है, बिकॉज इट इज एट हाइट। जो माउंटेन्स है वो ब्लॉक कर देते हैं, माउंटेन्स जो है क्लाउड्स को अंदर आने नहीं देते, एंड दैट्स व्हाई वहां पर बारिश नहीं होती है। ओके, सो रीजन इज दिस, क्योंकि क्लाउड, माउंटेन्स इतने हाइट के हैं, क्लाउड्स यहाँ पर हैं। सो हियर इज लेह लद्दाख, सो क्लाउड्स आर हियर, so they cannot pass these mountains. Got it? Yes. So, so we Indian, अगर आपने ये अलग हैबिटेट्स देखनी है एक्सेप्ट पोलर, जस्ट रोम अराउंड इंडिया को, घूमो, ट्रैवल करो अपने पेरेंट्स के साथ, यू विल सी ऑल दीज थिंग्स इन इंडिया ओनली। ठीक है, सो इट कैन बी हॉट, राइट डाउन बेटा, इसको डेजर्ट हैबिटेट करके लिखो, जो आपने भी आप फ्लो चार्ट बनाया उसी के नीचे लिख लो बेशक। सो इट कैन बी हॉट, it can be cold. Dry conditions, as I discussed earlier also, and then lack of water, पानी की कमी होती है वहां पर। ठीक है, अब ये देखो, जो एनिमल, जो प्लांट इज लिविंग हियर, सर्वाइविंग हियर, कैसे कर रहा होगा? देयर आर सम अडेप्टेशंस इन देयर बॉडी, है ना? कुछ तो उसने अपने आप में चेंज किया होगा। So that's why that plant or animal can live here. Yes? Yes. But I'm not going to tell right now what kind of adaptation. अभी ये लिखो problems क्या है? What are the problems? What are the features of these areas or these habitats? ठीक है? पहले हम ये देखें कि है क्या यहाँ पर. Then we will come to the solution. We will come to know that how people or how animals or how we can say plants are growing there. ठीक है? तो पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे, पहले हम जानेंगे के बारे में। ठीक है, रेनफॉल, क्योंकि ड्राई, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, 10 इंच पर ईयर से भी कम। ठीक है, इज इट डन? Yes. ओके, सो मूविंग टू दिस, ये कौन सा हैबिटेट होगा बेटा? मैम पोलर कैन यू सी दीज टाइनी पोलर बियर्स हियर? Yes. ओके, फैमिली जा रही है लगता है, है ना, घूमने। तो दिस इज द
polar bear family that is roaming where? In polar region. ठीक है? So this habitat is polar habitat. अब यहाँ पर क्या होता है? Let's see the points. Very cold. बहुत ठंडा इलाका है. अभी जो आपने कॉटन की शर्ट्स पहनी है, you cannot go in these uniform. इस यूनिफॉर्म में आप पोलर रीजन में नहीं जाओगे. क्या हो जाएगा if you go like this? Cold, ma'am, cold. Ma'am, we should wear jackets. We should wear jackets. We should wear warm Woolen clothes. Ma'am, warm clothes. पूरा पैक होके जाए तभी फायदा है ना? अदरवाइज तो हम बस ठंड कब जाएंगे, है ना? लाइक दिस. नाउ फ्रोजन, सारी चीजें जमी हुई है. यू कैन सी एवरीथिंग इज फ्रोजन हियर. वाटर इज फ्रोजन. दिस इज ओशन. ये ओशन है जो कि क्या हो रखा है? फ्रोजन, जम गया है. ठीक है, इतना ठंड पड़ा है, जम गया. और यू कैन सी पोलर बियर्स आर मूविंग ऑन दिस. दे आर वॉकिंग. ठीक है. नेक्स्ट, बिकॉज इट्स एट हाइट. ठीक है, ये हाइट पे होगा पोलर रीजन, तो वहां पर ऑक्सीजन की भी कमी होगी. इवन इन लेह लद्दाख इफ वी गो, वी एक्सपीरियंस दिस थिंग, क्योंकि जो चीज हाइट पे होगी उसकी वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी. बिकॉज एज वी मूव अप, अगर जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस? एयर गेट थिन. हवा पतली होती लगती है. अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रही हूँ. पतली होने लगती है मतलब उसकी जो गैसेस हैं वो कम होने लगती हैं. तो उसमें से एक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन भी कम होने लगेगी. एंड दैट्स व्हाई पीपल हु गो टू द Leh Ladakh or high altitude region, they experience dizziness, they experience nose bleeding. ठीक है? Now coming to next. Is it सबने लिख लिया? Is it done? Yes. So now moving to the next. Now what is this? What type of habitat is this? Ma'am, rainforest. यहाँ पर forest दिख रहा है? Can you see the forest here? Mountain. I was also wondering कि मैंने कहीं गलती से आपको trees तो नहीं दिखा दिए. मुझे भी एक बार देखना पड़ा इसे. Here you can see it's grass, grasses are छोटे छोटे, and you can see river is flowing, and here you can see big mountains, peaks you can see. Yes. Yes. So here it is mountain habitat. It's a mountain habitat. Up now let's see what is in the mountain habitat. It's cold. It's not very cold. It's cold as compared to polar region. Then sloping region. Sloping ये देखो, ये sloping ऐसे सीधा नहीं है, एकदम ऐसे नहीं है. It is sloping, slanting. तो इसमें चढ़ना उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. It is difficult to move up and come down. ठीक है? Then again, because it is situated at height, so it is having low oxygen. यहाँ पर भी same problem, low oxygen. Is it done? Yes, ma'am. चलो, let's move. Now what is this? अब बताओ. Forest. Now here come forest. क्योंकि अब हमें दिख रहा है, trees you can see, water body you can see, and it is a what forest? Rain forest. Rainforest. ठीक है, वहां पर रेन फॉरेस्ट. why it is called rain forest? Most of the time in year. ठीक है, साल में लगभग पूरे दिन. ठीक है, वहां पर बारिश होती है. ठीक है, so here you can see green layer lichens are developing on the trees. ठीक है, water is flowing, and let's see what problem or what characteristics of this. It can be hot, and except this it is wet also. Hot and wet, ये नहीं कि रेन हो रही है तो ठंडा इलाका है. नो, hot and humid we can say. It is hot and wet. गीला चिपचिपा, जैसे अभी अभी चल रहा है ना हमारे यहाँ पर सीजन, humid. It is like throughout the year. पूरे साल यहाँ पर यही रहता है, चिप चिप. पूरा फेस ऐसा लगता है ऑयल किसी ने लगा दिया, लगता है. Yes. कुछ टाइम बाद, अभी तो चलो अभी नए नए है ना, जैसे जैसे दिन पास होगा यू विल एक्सपीरियंस दिस, that something is applied on your face, है ना? Yes. So now coming to this, what is this now? Plains. Huh? Plains. Plains. It is plain. सोचो एक बार, क्या क्या दिख रहा है? What you have seen here?
ग्रीन ग्रास ग्रास, अगर आप नोटिस करो, यू कैन सी ओनली ग्रास हियर, यस। एक बेचारे सिंगल ट्री को छोड़ दो, डोंट फोकस ऑन द ट्री, दैट सिंगल ट्री बेचारा कैसे ग्रो हो गया पता, ग्रासलैंड क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रास ही ग्रास दिख रहा है, तो इट्स ए ग्रास लैंड, है ना। Yes. Now this habitat is grassland habitat. It's a grassland habitat. So यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती, it rains, ठीक है, यहाँ पर बारिश होती है लेकिन बहुत ज्यादा, ठीक है, और यहाँ पर आपको ग्रास देखने को मिलेंगे, ठीक है। Now coming to this, what type of habitat is this? वाटर बॉडीज क्या कहते हैं इसको? What we call it? ओशन कौन बोला ocean? I want to know. जो Okay, tell me, is this ocean? Does it look like ocean? It's aquatic habitat. It's aquatic habitat, beta. It's aquatic habitat. Under aquatic habitat, these are the three different habitats जो भी हमने डिस्कस की थी: फ्रेश वाटर, मरीन, कोस्टल। यही अभी डिस्कस किया था। फ्रेश वाटर जैसे रिवर, यू कैन सी हियर रिवर, हियर यू कैन सी ओशन, एंड हियर यू कैन सी कोस्टल। Yes. Yes. So to make it more clear to you here, that's why I'm showing you pictures of this. ठीक है? So you can understand. This is simple: river, flowing water, ocean, salty water, coastal, near the beach. Okay? Now let's see. Fresh water. Write down the example: rivers, ponds, lakes, streams. glaciers also. And it has low salt content also. We can say very less salts. नमकीन पानी नहीं होता, खारा पानी नहीं होता. We can easily drink it. Glacier is also example of fresh water. Yes, beta. And these rivers are coming from those only. Glacier melt होते हैं, then they form rivers. ठीक है? Yes, sir. Even Ganga river, that is the longest river in India, it is also coming from glacier, Gangotri. वर्ल्ड के बारे में जानने से पहले अपने कंट्री के बारे में जानो. आपसे कोई पूछ ले इंडिया का कोई एक ग्लेशियर बता दो, तो यू कैन से गंगोत्री. That forms a river. That is Ganga river. So coming to marine, seas, oceans, and have high salt content. Lot of salts. Unsuitable for drinking also. Yes, if you drink, you feel like to vomit. इतना ज्यादा खारा पानी होता है. अगर आप एक ग्लास पानी लो, plain water, add 5 to 6 spoon of salt and try to drink it. You can experience this thing. You can relate with the ocean water. ठीक है? फिर आप relate करोगे कि हम बोल क्या रहे हैं. एक plain water है, and in another glass put 5 to 6 spoon of salt and try to drink that. पीना मत, थोड़ा सा taste करना. ठीक है? You feel the difference. What is the difference between fresh water and ocean water or sea water? Got it? Now, coastal area, sea meets land. जहां पर समुंदर जमीन से मिलता है. That normal language में हम उसे beach कहते हैं. Yes, we call it beach. किस किसने बीच देखे हुए वैसे हैंड रेस करना. मैम यस. बड़े एक्साइटेड हो गए हैं मैम. यस, आई हैव सीन. दैट्स नाइस. तो समुद्र के पास जब गए थे, पानी गया मुंह के अंदर? डिड यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? किसी का? क्योंकि जब बीच पे गए हो तो पानी के अंदर भी थोड़ा सा खेले होंगे, वेव्स आती हैं तो. यस. यस.
तो पानी बॉडी पे लगा होगा तो लगता था ऐसे कि कुछ दाने दाने लग रहे हैं? यस। और कभी वो नमक वाला पानी गलती से मुंह में गया है? मैम नो यस। सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, है ना? कुछ ने एक्सपीरियंस किया, और कुछ कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? आई हैव टोल्ड यू कि कैसे करना है. टेक 1 glass of water, put 5 to 6 spoon of salt in that, and then try to drink few drops. Okay, not more than that. Now let's move ahead. So we were discussing about habitat, and we discussed about features of those habitat. Now how living organism live there, you know, through some process that is called adaptation. हमने adaptation बोलते गए हैं. So who can tell me what is adaptation? Any of you can tell me what is adaptation? Define adaptation. क्या कहते हैं adaptation को? Any of you can explain me adaptation? Seerath Sharma from 6th A. Seerath Sharma. Ma'am, adaptation is when an animal adapts to an environment. It survives in an environment. Yes, so कुछ वो अपनी बॉडी में कुछ अपने अराउंड चेंजेस करता है so that it can survive in certain environment. Okay, so now everyone note down this. सब लिखो इसको adaptation को. The specific characters in the organisms living in adverse habitats. ठीक है, कुछ ऐसे characters, ठीक है, जो कि कोई organism adverse मतलब normal condition में नहीं अलग condition में रह रहा है. These characteristics help the organisms to survive or live in the specific habitat. Write down this. कि वो कुछ ऐसे फैक्टर्स ही डेवलप कर लेते हैं, एंड इट विल गो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ऐसा नहीं कि उन्हीं तक लिमिट रहेगा, ठीक है? इट विल गो टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन. Ma'am, the survival technique of developing characteristics according to the place where organism lives is called adaptation. Yes, we can say vice versa, same thing. ठीक है बेटा? We can say that also. That's nice. And Done? Okay. So now, no. okay, I'm not changing, I'm not moving. Okay. अब ये टर्म हमने कहीं सुनी है, camouflage? Ma'am, yes. Where? And what is that meaning? झाड़ियाँ. Camouflage is jhadiya? Bushes? No. Who can tell me? Okay, 6th B, 4th bench boy. Yes, beta. Ma'am, in Girgit. In Girgit. Okay. So yes, we can say in Girgit. Girgit किस किसने देखा है? And सभी ने देखा होगा ऑलमोस्ट. अब गिरगिट जो है जब जमीन पे होता है, ओके, व्हेन गिरगिट इज मूविंग ऑन लैंड, तो उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन सा, मिट्टी जैसा. व्हेन इट मूव्स टू द ट्री, जब वो ट्री में जाता है लीव्स के बीच में, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन. सो दैट इज कैमोफ्लाज, ब्लेंडिंग. कलर की ब्लेंडिंग करता है वो, अपनी स्किन का कलर जो है चेंज करता है एज पर देयर सराउंडिंग. जैसी सराउंडिंग है वैसा अपना कलर करना. व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? सो दैट उसे क्या पता हम उसके फ्रेंड है दुश्मन है, दूसरों से बचने के लिए, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके. सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस. एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग्स ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी सीन. ठीक है, ताकि इसको कोई देख ना सके. इट इज शोन बाय बोथ प्रे
and predators. So here terms are prey and predators. We will discuss that also. Is it done? Yes, ma'am. Okay, no, okay, you take your time. Do it fast. ओके, सो इसको हम एक रियल लाइफ से मैं आपको कनेक्ट करके बताती हूँ. इन आर इंडियन आर्मी फोर्स, अगर आर्मी फोर्स की ड्रेस देखी होगी, देयर ड्रेस इज लाइक व्हाट, जैसे पेड़ की होती है. यस, यस मैम. है ना, वैसी होती है. व्हाई दे हैव दिस टाइप ऑफ ड्रेस? उनकी यूनिफॉर्म ऐसी क्यों होती है? मैम, so that they can hide and that enemy cannot see them. तो देखो दोनों रोल हो रहे हैं. क्या रोल हो रहे हैं? एक तो अपने आप को बचा रहे हैं, दूसरा जो एनिमी है उन पर अटैक कर सके, ठीक है, बिना उनके सामने आए हुए. सो दिस इज ऑल्सो कैमोफ्लाजिंग. ठीक है, सराउंडिंग के साथ वो मर्ज हो गए, क्योंकि जंगल में होंगे तो दूर से कहाँ पता लगेगा कि यहाँ पर कोई इंसान है. ठीक है, सो हियर आर टू टर्म्स, प्रे एंड प्रेडेटर्स. एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज प्रे एंड प्रेडेटर्स? Yes, B section, Manmeet Kaur. Manmeet Kaur from B section. Can you tell me, beta, what is prey and predator? Manmeet Kaur, who is Manmeet Kaur? Yes, beta. Can you tell me what is prey and predator? क्या होता है prey and predator? Ma'am, I do not know. Okay. अब मुझे बताओ, आपने ये वर्ड सुना है शिकार और शिकारी? Ma'am, yes. सुना है, शिकार और शिकारी सुना है. अब शिकार क्या होता है? मैम, जो शिकारी जिसको हंट करता है. बेटा बेटा, लेट मी आस्क मनमीत एंड लेट हर से. ठीक है बेटा, बोलो मनमीत, शिकार क्या होता है बेटा? मैम, शिकार का मतलब होता है मैम, अगर हम किसी जानवर को मारते हैं. तो जो मर रहा है दैट इज, जो जिसको खाया जाएगा या जिसको मारा जाएगा दैट इज शिकार, है ना? यस. तो हम शिकार का एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल डियर. मैम, यस. और फिर शिकारी कौन हुआ? एनी. बेटा लेट हर स्पीक, डोंट मेक हर उसको कंफ्यूज मत करो. लेट हर स्पीक, शी इज सेइंग राइट. ओके, यस बेटा बोलो आप. मैम, एनीवन. एनीवन हु कैन किल द डियर, मैम, यस. है ना, उसको नुकसान पहुंचा सके, तो वो शिकारी हो गया. अब इसी को हम नाम दे देते हैं इन इंग्लिश. प्रे कह देते हैं शिकार को, प्रेडेटर कह देते हैं शिकारी को. ठीक है, सो प्रे इज डियर, प्रेडेटर इज लायन. ठीक है, ओके मैम. ठीक है, सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड. everyone now note down this. ठीक है, ये तो हो गया कैमोफ्लाज का. लेट मी शो यू प्रे. राइट डाउन द डेफिनेशन तो नहीं, इसका क्या कहते हैं. प्रे विच इज बीइंग ईटन, जिसको खाया जाता है, जिसको मारा जाता है. लाइक डियर, प्रे इज दैट. इसको याद करने का और तरीका है. हम प्रे करते हैं ना भगवान से, प्रे यस. करते हैं ना कि हम सही रहे, सब कुछ सही रहे. तो जो शिकारी है, सॉरी शिकार है, वो भी प्रे करेगा, मुझे मत मारो, है ना, मुझे जाने दो. सो उससे याद करो, प्रे मतलब क्या हो गया, जो अपनी लाइफ को बचाना चाहता है. ठीक है, दैट इज प्रे, दैट इज बीइंग ईटन. नेक्स्ट इज प्रीडेटर. सो प्रीडेटर कौन हो गया? शिकारी, दैट इज गोइंग टू किल प्रे.
So which eat other organism, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, मारता है, that is predator. Ma'am, I have a question. Yes, beta, do ask. Ma'am, are all predators carnivores? Are all predators are carnivorous? We can say yes, because they kill animals, then they eat them. But it's not necessary like Hina. They do not kill, they eat on dead bodies. ठीक है? There are some exceptions also. ठीक है? हिना पता है ना आपको, एक जैसे इट्स जस्ट लाइक डॉग और वी कैन से वुल्फ के बीच का एक एनिमल होता है जो डेड बॉडीज होती है। सपोज कर लो लायन ने तो खुद मार के ही खाया है, तो कुछ जो रह गया है उस पे हिना विल एक्ट। उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। दीज आर अनदर कैटेगरी, यू विल लर्न लेटर ऑन। ठीक है? गॉट इट बेटा? इज इट अंडरस्टूड? Ma'am, yes. ओके, सो नाउ लेट्स मूव। हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? Yes, I can see in 6th, 8th, third bench boy. Yes, beta, hibernation. And the deep sleep for 5 to 6 months that animals do during the winter to conserve their energy. That's good. That's good. Wonderful, beta. Sit down. That's good. Hibernation is basically सो जाना, खाया पिया सो जाओ, कुछ नहीं करना हमने। कौन करेगा ऐसा काम? Bears. Polar bear. क्योंकि वो सर्दियों में ही होगा काम। ठीक है? इवन इट हैपन्स विद अस। हम 4-5 महीने तो नहीं सोते, लेकिन हम 4-5 घंटे दिन के टाइम सो सकते हैं। इफ इन विंटर्स इफ वी हैव गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, छोले भटूरे एक ही बारी में सब खा लिए, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सर घूमेगा एंड वी फील टू मच स्लीपी। हमें नींद आएगी, है ना? होता है ऐसा हैवी खाने से? Yes. सो ये हमारे साथ भी होता है, जबकि हमने तो थोड़ा ही खाया है। बट पोलर बियर्स और द एनिमल्स हु आर लिविंग इन पोलर रीजन्स, अब बहुत ठंड आने वाली है, बहुत ज्यादा, उन्हें पता है, दे नो। ठीक है? जैसे हमें पता है कि अभी महीना आने वाला है तो आगे क्या होगा। सो सिमिलरली दे कैन ऑल्सो सेंस दैट, क्योंकि दे आर लिविंग इन दैट एरिया। सो व्हाट दे डू, दे ईट फूड एज मच दे कैन। वो खाते रहते हैं, दे कीप ऑन ईटिंग, और उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं फॉर, सो दैट ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो हार्श वेदर आए दे कैन यूज इट। मगर अगर वो चलते रहेंगे, वो मूव करेंगे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो उन्होंने खाया वो तो डाइजेस्ट हो गया, कंज्यूम हो जाएगा। नाउ टू प्रिवेंट दैट लॉस, उस चीज से बचने के लिए व्हाट दे डू, दे स्लीप। वो सो जाते हैं, क्योंकि जब सोएंगे कुछ काम करेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो एनर्जी चाहिए नहीं। सो दैट इज हाउ दे सर्वाइव दोज मंथ्स। ठीक है? वो जो हार्श वेदर वाले जो उनका टाइम होता है उसको वो ऐसे निकालते हैं, सो के, और जो पहले का खाया हुआ है उसी को धीरे धीरे उनकी बॉडी खुद यूज करती रहती है। ठीक है? दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन एंड इट इज विंटर स्लीप। इसको लिखना बहुत जरूरी है, विंटर स्लीप, बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म स्लीप ड्यूरिंग समर सीजन। उसका एक अलग वर्ड होता है एस्टिवेशन। ठीक है? मगर इन योर सिलेबस इट्स हाइबरनेशन। तो विंटर स्लीप इन वार्म एरियाज, थोड़ा सा गर्म इलाके में। ऐसा नहीं कि वो पोलर रीजन को छोड़ के चले गए, नो, दे आर नॉट गोइंग टू लीव दैट एरिया। दे विल लिव इन केव। जैसे आप केव में चले गए तो केव इज बिट वार्म एज कंपेयर टू द आउटर इन्वायरमेंट। जैसे अब हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होगी दिसंबर में, सो इट्स कोल्ड आउटसाइड। अब घर के अंदर भी कोल्ड होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस, है ना? एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमें घर पे थोड़ा सा गर्म लगता है। सिमिलरली एनिमल्स हु इज लिविंग इन पोलर रीजन, वो एक केव में रह लेते हैं, थोड़ा सा जमीन में गड्ढा करके रह लेंगे, सो दे गेट लिटिल बिट वार्मनेस। ठीक है? Have a doubt. यस, बट डाउट? मैम जैसे आपने बोला कि वो 5 से 6 मंथ तक एनिमल्स सो जाते हैं खाने के बाद। मैम जैसे कई बार खा पेट दर्द भी होती है मैम, तो वो भूख उठा नहीं देगी उन्हें? उनको जब भूख, उनका बेटा उनका सिस्टम ही ऐसा है जैसे हमारा सिस्टम है। आर ह्यूमन बीइंग सिस्टम इज लाइक आफ्टर 2 hours वी फील हंग्री, यस,
हमारा बॉडी बताना शुरू कर देता है, नाउ पेट में गर्गलिंग साउंड होना शुरू हो जाएगा, है ना, हम कहते हैं चूहे दौड़ रहे हैं। सो हमारी बॉडी बताना शुरू करती है, हमें खुद बोलने की जरूरत नहीं है कि यस इट्स टाइम टू हैव आवर ब्रेकफास्ट, इट्स टाइम टू हैव लंच और डिनर। आवर बॉडी टेल अस, यस, सुबह उठते ही पता लग जाता है ना कि हाँ हमने ये काम करना है, हमें अपनी बॉडी को बताना नहीं पड़ता। Our body doesn't need our command, our instruction. We are working according to our body. हम अपनी बॉडी के हिसाब से काम कर रहे हैं। Similarly, their body is adapted. That is why we are using this word adapted. उनकी बॉडी वैसे अडेप्ट हो चुकी है कि वो जो खाना है, ठीक है, खाना क्या होगा, अब वो यहाँ पर ये तो नहीं खा रहे होंगे ना कि जंक फूड खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। जो वो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर ईटिंग अदर एनिमल, दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है, दूसरे बॉडी का फैट ले रहे हैं। सो फैट इज गेटिंग स्टोर्ड, उनकी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है, एंड दैट फैट इज डूइंग टू जॉब, दो काम कर रहा है वो फैट। एक तो धीरे, क्योंकि फैट को टूटने में, अगर हम कहें डाइजेशन होने में, डाइजेस्ट होने में इट टेक्स टाइम। हमारी बॉडी में भी सबसे स्लो डाइजेस्ट होता है फैट, उनकी बॉडी में भी सबसे स्लो डाइजेस्ट होता है फैट। तो फैट जो है उन्होंने इतना सारा जो खाया हुआ है, it will slowly get digested by their body, and because they are not doing anything, they are just sleeping. अब आप खुद सोचो, हम कहते हैं 2-2 घंटे बाद हमें भूख लगती है, लेकिन हम 8-9 घंटे जब सोते हैं, we don't feel hungry। क्या आप रात को अगर 9 बजे सोए, 11 बजे उठ के कहते हैं मुझे भूख लग रही है, 2 घंटे हो गए खाना दो? नो, नहीं कहते ना। सो देयर पैटर्न इज लाइक दैट, उनकी नींद का पैटर्न ही ऐसा है कि वो 4-5 महीने सोएंगे, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे डू नॉट वेक अप फॉर हैविंग फूड। यस, देयर जो डेली के कुछ काम है जैसे कि फ्रेशनेस होना, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ओनली इन स्लीपिंग, ठीक है। तो देयर बॉडी इज अडेप्टेड इन दैट वे। क्लियर? यस मैम। And that is nice question बेटा, that's really good you are asking me। आपके वजह से कईयों के जो दिमाग में शायद से क्वेश्चन नहीं भी आया, उनके दिमाग में भी आया होगा, and they get the answer of this, that's good। I want my students to ask me as much as question they can related to the topic, ताकि किसी के दिमाग में कोई डाउट या कोई कुछ रह ना जाए, and that is what your first chapter, अभी NCERT का first chapter is about this also। In science, we should ask how, why, what, where, ठीक है। So science is about this only। चलो, अब आता है streamlined body। What is streamlined body? क्या होती है streamlined body? lightweight body। No, streamlined body is not lightweight body। मैम to reduce hydrogen। क्यों हाइड्रोजन, क्यों हमने कम करनी है, क्या बिगाड़ा है हाइड्रोजन ने हमारा, कुछ किया? अब see this, see this is a streamlined body। Streamlined body means middle piece or middle body part is broader and these two extreme part, ending part जो है they are narrow, ये पतले होंगे। अब ये कौन से ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलते हैं? इस टाइप के आपको जो ऐसे दिखते हैं, you must have seen। ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर किसका होता है कि बीच से मोटा और साइड से पतले पतले? कैमल। कैमल से होने लग पड़ा पतला। अब चलो इसको मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, ठीक है। लीफ। फिश 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 फिश। ये फिश होगी, ओके, मतलब एक्वेटिक एनिमल हो गया। It's in bird also। Bird? Yes। Yes, in bird also। And you must, आप ध्यान देना, ठीक है, अब क्लास के बाद जब घर जाओगे ध्यान देना, focus on this।
एरोप्लेन की शेप भी ऐसी होती है, बीच से मोटा एंड से पतला. सिमिलरली बोट की शेप भी ऐसी होती है, बीच से मोटा साइड से पतला. यस. Yes. So it is streamlined. देखो boat is like this, boat is also like this. एंड से देखो पतली है, नैरो है, बीच से मोटी है. Coming to aeroplane, Yes. aeroplane is also like this. Yes. एरोप्लेन भी ऐसे ही होता है, बीच में ये मोटा होता है और एंड में दोनों साइड से पतला होता है. इट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी. इट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी. और इसका फायदा ये होता है बिकॉज दे आर नॉट मूविंग ऑन लैंड. ये जमीन पे नहीं चल रहे, ना ही पानी वाले जानवर, या फिर हम यहाँ की बात कर ले, ना ही वी टॉक अबाउट एनिमल्स हु आर मूविंग इन एयर. दे आर मूविंग अगेंस्ट समथिंग. अब उनको प्रेशर फील होता है बिकॉज दे आर गोइंग अप और कुछ पानी के जो अंदर चल रहे हैं. सो टू रिड्यूस दैट प्रेशर, क्योंकि अंदर पानी, अगर हम पानी के अंदर जाते हैं वी फील एक प्रेशर कि हम अंदर डूब रहे हैं. यस. अगर आप थोड़े गहरे पानी में जाओ, आप सिर्फ थोड़ा सा अपना बैठो तो आपको ऐसा लगेगा पानी अंदर खींच रहा है. यस. Yes. यस. सिमिलरली अगर हम ऊपर हवा में जाते हैं तो सेम थिंग वी एक्सपीरियंस देयर आल्सो. सो टू रिड्यूस दैट प्रेशर ऑन देयर बॉडी, animals who are living in water and animals who are going or flying in air, they have this body that is called streamlined body. Got it? Yes. So it is streamlined body. Thick in middle, thin at ends. लिखो इसे, और इसको बनाना है. ये आपके आगे in higher classes we are going to learn about this in more detail. Thick in middle and thin at ends. Is it done? Yes, ma'am. Okay. Note down. So now we discussed about prey and predator. This is how you can see lion is here what? Prey or predator? Ma'am, predator. And zebra? Zebra is prey. Now grass is? Ma'am, वो चले गए. Grass is? Insect is? Predator. If we talk about this, only अगर इन दोनों को देखें. But now for the frog, insect is prey and frog is predator. Predator. Frog और hawk की बात करें, so hawk is a predator and frog is prey. Prey. And this whole thing is called food chain. What we call it? Food chain. क्योंकि chain क्यों कह रहे हैं? Why we are calling it chain? Insect is having grass. Okay, now grass is in his body. उसकी body में गया. Now frog is having this insect that is already having grass. अब frog ने insect को खा लिया. Now hawk is having frog. Frog जिसने insect को खाया, insect ने किसको खाया? Grass को खाया. तो सारी चीजें किसके पास गई? Frog के. And finally, hawk is having all these things because he is having frog. So this is the chain. Got it? Yes. Yes? Yes. Okay, beta. So this is how polar bears sleep. Can you see this? साथ में एकदम एक दूसरे के साथ कडल करते हुए सोते हैं, आराम से हक करके. देखो अपने बच्चों के साथ कैसे सोया ये. They sleep like this. And this is streamlined body. You can see that. Fish and birds both are narrow at their ends and thick or broader at middle. Got it? Yes. ठीक है. So now we have already discussed these things. हमने ये लिख चुके हैं. ठीक है. So from the next class, what we are going to learn, we are going to learn how organism adapted in different habitats. अभी तक हमने ये पढ़ लिया. What are the features of different habitats? We learned some new terms. ठीक है. अब in the next class, we are going to learn or we are going to start with this adaptation in desert organisms.
So in desert, we are mainly focusing on camel and cactus. ठीक है? So that's all, students. So now your math class is going to start. Bye, students. Bye. Morning, ma'am. Morning, beta. How are you, ma'am? Yes, I am good, beta. आप काम भूल के करते हो ना, आपकी फुल कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है और फिर काम ठीक हो जाता है आपका. वेरी गुड. डोंट लुक हियर एंड देयर बेटा. किसी को नहीं समझ आया आज में? बी सेक्शन, you have to write down, bete. Move your pen. You know, most important चीज is आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये इवन नंबर्स हैं. फर्स्ट वाला इवन है, सेकंड वाला इवन है, थर्ड वाला इवन है. ये सारे 2 से स्टार्ट होंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट बाय 2. अगर आपको थोड़ी मुश्किल लगती है तो आप रफ कॉलम में 72 को ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो. शुरू के थोड़े क्वेश्चंस में आप ऐसे डिवाइड कर लो, फिर आपको मेंटली करना भी आ जाएगा. ओके, यू नो 3 2s are 6. 36. यस, 1 कैरी ओवर हो गया. कैरी ओवर होके वो 12 बन गया. 6 2s are 12. अगेन इट इज एन इवन नंबर. वी आर डूइंग 1 2s are 2. 1 कैरी ओवर हो गया. 8 2s are 16. Again even number. 9. 9, then 3, then 3. Very good. Okay, do for others numbers also. I'm done. Okay, I'm writing the answer over here. 72 के फैक्टर्स आपके पास बन रहे हैं. जिन्होंने कर लिया है, they can match here. जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करो. करने के बाद आप मैच करोगे. वी आर नॉट काउंटिंग 1. किसी भी केस में हम 1 को नहीं ले रहे हैं. आपका लास्ट में 1 बचता है, हमेशा बचेगा आपका. When you close it, जब आपकी फैक्टराइजेशन खत्म होती है ना, नीचे 1 आएगा. लेकिन 1 को हम फैक्टराइजेशन में नहीं काउंट करेंगे बिकॉज वी आर राइटिंग ओनली प्राइम फैक्टर्स. ओके, 1 is a factor of every number. That is not wrong. आपने शुरू में मेरे को बताया था, बट यहाँ पे हम मेंशन नहीं करेंगे. Similarly, for 180, very good. Who have done, they can see from the board. Match कर सकते हो. 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Is it okay? जिनकी फैक्टर्स मेरे से मैच कर रहे हैं हाथ खड़ा करो. ओके, गुड. कई बच्चे अभी कर रहे हैं. प्लीज कंटिन्यू. वेरी गुड. ओके, नाउ आई थिंक एवरीबडी इज डन. ठीक है, आपके सारे फैक्टर्स आ चुके हैं यहाँ पे. अब आपको निकालना है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तीनों में जो कॉमन आ रहा है उनको मार्किंग करो. आपके पास तीनों में जो कॉमन है, वन थिंग इज दिस. अलग अलग सर्कल लगाने के बजाय आप अप डाउन अगर लिखोगे, आप ऐसे भी उनको मार्किंग कर सकते हो. एंड वन इज दिस. अगेन 2 इज कमिंग. And then you can see 3 is coming. You can do like this. इनकी मार्किंग कर लो. Are you getting it? ओके, और एक और 3 आपका कॉमन आ रहा है तीनों में. कैन यू सी? उसको आप सर्कल भी कर सकते हो. 1 2 3. अलग अलग सर्कल करो या फिर इकट्ठा करो. यू कैन डू इन एनी वे. आपको दिख रहा है कि जो जो नंबर हमारा कॉमन है उसको हम लिखते जाएंगे. ओके, फाइन.
Let us write down HCF of 72, 108 and 180. अभी इनका HCF क्या होगा? जो नंबर कॉमन है उसको लिखते जाओ. It will be 2, एक 2 कॉमन था, फिर दूसरा 2 एक और कॉमन है, फिर एक 3 कॉमन है जो तीनों में आ रहा है, और उसके बाद एक और 3 है जो तीनों में आ रहा है. Is it okay? What is coming? What is the answer? C section 36. 36 is the answer. This is the HCF of all 3 numbers. बाकी सेक्शन ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, इसको रिवाइज करो. सी सेक्शन जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन. ओके, टिल द टाइम दे ज्वाइन इट, आप एक और क्वेश्चन करो. आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन. सी सेक्शन जो कर रहे हैं, you can note down HCF of, find out 24. Yes, D section has joined. C section स्टूडेंट्स जिन्होंने कर लिया है बेटा रिवाइज करो इसको, जब तक बाकी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे. Yes, D section has come. D section बच्चे, please find out. Please see the answer. I'm revising once more. D section. You can see beta, now we have common factors. 2 was common in all. अगर आपका ऐसे अप डाउन नहीं है तो डजंट मैटर, आप सर्कल बना सकते हो अलग अलग. ओके, कैन यू सी 2 इज कॉमन इन ऑल, हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया. एक और 2 कॉमन है तीनों में, हमने वहां पे लिख दिया मल्टीप्लाई 2 सॉरी. देन वी सॉ 3 इज कॉमन इन दीज 3, वी आर राइटिंग 3 इन HCF. अगेन वन मोर 3 इज कॉमन, उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज ऑल यू गॉट इट, 36 इज द आंसर. Okay, have you done it beta, all of you? Okay, good beta. This is prime factorization method of HCF. हाथ खड़े करो किस किस को समझ आ गया है? Who have understood? Very good. I'm giving you one more question. You will be doing it now. Do it yourself. A section has also come. Okay, बाकी स्टूडेंट्स अभी तब तक एक और क्वेश्चन करो. HCF of 105, 140 and 175. Please do it. Please do it yourself. Start करो ये क्वेश्चन करना. By the same method अपनी prime factorization लिखो and find out करो. Do slowly, एक दूसरे से देखना नहीं है. You know it. Yes, A section बेटा. ये नोट डाउन करो. कोई डाउट है you can ask me. I'm revising for A section. हमने सारे कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं इसमें, राइट? जो फैक्टर्स हमारे तीनों नंबर्स में आ रहे हैं, we have written them as 2 into 2 into 3 into 3. सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 36. So this is the highest common factor of these 3 numbers. Okay, please note it down. बाकी D section और C section, please start this question in the same way. You have understood the method?
बेटे लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे ना, तो अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट को अप्लाई करो अपने अपने क्वेश्चंस में। जैसे 105 है, यू नो इट, 105 हमारा किससे जाएगा, पीछे 5 है ना, तो कौन से टेबल से जाएगा ये? विल इट गो बाय 3? 5, यस, यू नो इट, डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करो इनमें। ओके, स्टार्ट बाय 5, वेरी गुड। ओके, आई एम जस्ट क्लियरिंग इट, आई थिंक एवरीबडी हैज नोटेड इट नाउ। प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया सबने? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। वी आर डूइंग HCF ऑफ, आई एम रिपीटिंग वंस मोर। कौन कौन से नंबर है आपके पास? 105 है, देन 140, 140, and one more is 175. Okay, these are 3-digit numbers. अपने divisibility test लगाओ and start doing. Do it confidently. Okay. I'm writing factors of 105. You can match it. जो बच्चे कर रहे हैं करके इसको मैच करो। 3 into 5 into 7. किसके आगे ये हाथ खड़ा करो, किसने 105 के निकाल लिए? Are you finding it difficult? Let us do it here. See, आपने मेरे को बताया कि ये 5 से जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। ओके, तो लेट अस, सिंस दिस इज एन ऑड नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर, वी कैन चेक बाय एडिंग। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में 3 में क्या सीखा था कि वी विल ऐड दीज नंबर्स, 1 + 0 + 5 कितना है? 6 है ना। अगर 6 3 से जाता है तो पूरा नंबर भी 3 से जाएगा। यू हैव डन इट इन डिविजिबिलिटी टेस्ट, राइट? तो लेट अस स्टार्ट। तो 3 से स्टार्ट करो। 3 3 is 9, 5 3 is 15. Then you can take 5, and then you can take 7, and then 1. That's why you got it 105 is equal to 3 into 5 into 7. Right? Similarly, find the other one. Find for 140. बहुत सिंपल नंबर है, इवन नंबर है। Anybody who is done for 140, हाथ खड़ा करो। Very good. I'm going to write answer over here. You can match it. It is 2 into 2 into 5 into 7. Who have done, they can see match कर सकते हैं। Similarly for 175, अगर आपका अभी complete नहीं होगा, you can complete at home. Okay? It is, your time is also going to up. 5 into 5 into 7. These are the factors. Okay? You note down the answer, then you can match and complete at home. HCF अभी हमने निकाला है, हमने सारे common factors को लिखना है, जितने जितने common है तीनों में, right? You can see 3 जो है वो common नहीं है, तीनों में 3 नहीं आ रहा है, we cannot circle it, but 5 is coming, 1 2 3, तो हम 5 लिख देते हैं यहाँ पे। Then one more number, you can see 7 is common, 1 2 3, तीनों numbers में हमारा 7 is a factor, so we are writing it as 7 over here. Okay, then your answer will be 35. After multiplying, we got HCF as 35. Please note it down and understand. Okay, with this I am closing. Next time we'll continue with this. Anything you want to ask? Hi, ma'am. Have you understood better, all of you? Yes.
Okay. Next time we'll do other method of HCF. Okay. Bye, ma'am. Bye, beta. Bye. Bye, ma'am.